Good evening, students. Today I am here with a new lecture, and this lecture is all about the. This is very first lecture of 11th class, and this is about the units, physical quantities, and dimensional analysis. Okay, so first of all, I just want to tell you what is the meaning of physical quantities. Physical quantities का क्या मतलब रहता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी टर्म्स में यू कैन एक्सप्रेस द फिजिक्स. ओके, द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज. दीज आर नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज, एंड these quantities can be measured directly or indirectly. There are two types of physical quantities. One is known as the fundamental quantities and second one is known as the derived physical quantities. So derived physical quantities, physical word जो है उसका मतलब क्या है कि that something you can measure. Okay, so that is the meaning of physical. So two types of quantities we have. One is fundamental and second one is the derived physical quantity. Fundamental quantities हमारे पास कुछ 7 fundamental quantities हैं, and मैं पहले उनको बता देता हूँ. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सा है हमारे पास. पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, सेकंड वन इज लेंथ, सेकंड वन इज द थर्ड वन इज द टाइम, देन टेम्परेचर, then amount of substance, then is luminous intensity, and then one is current. So we have 7 fundamental quantities: mass, length, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. Okay, then हमारे पास इसके अलावा कुछ क्वांटिटी आती है, दैट इज नोन एज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो जिनको हम बेसिक क्वांटिटीज भी कह देते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनको बनाने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम जस्ट राइटिंग द वेलोसिटी. वेलोसिटी भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है. ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कैसे? लाइक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. This is the formula for velocity, displacement upon time. So now this displacement is just related to the length and this time is related to the time. So means to make velocity we use displacement and time, means we use two fundamental quantities. So when we use the fundamental quantities and create a new quantity, and then this quantity will be called as the derived physical quantity. So there is a very clear cut difference between these two type of quantities. One of the fundamental, we have 7 fundamental quantities, and after using these fundamental we can create new quantities that are called as derived physical quantities. Okay, इसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपने क्वांटिटी तो बना लिया, लेकिन क्वांटिटी को लिखने के लिए, कुछ राइट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वी शुड रिक्वायर सम यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, किसी भी क्वांटिटी को लिखना है, मैं आपसे कहता हूँ कि 5 किलो चीनी ले आइए, तो आप कहेंगे कि 5 इज द क्वांटिटी, लेकिन व्हाट इज द यूनिट? अगर मैं किलो नहीं लगाऊंगा साथ में तो आप कुछ सामान खरीद के नहीं ला सकते हैं. सो दैट केजी इज नोन एज द यूनिट. So unit is very important to express any physical quantity. You definitely require a unit. Without unit you can do nothing. So यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के भी हमारे पास कुछ 4 तरह के सिस्टम रहते हैं. वन इज नोन एज द एसआई सिस्टम, अदर वन इज द सीजीएस सिस्टम, अदर वन इज द एमकेएस सिस्टम, एंड लास्ट वन इज द एफपीएस सिस्टम. तो जो फर्स्ट वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. इसे एसआई सिस्टम कहा जाता है, इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, एंड सीजीएस भी वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, लेकिन एसआई सिस्टम जो है ये ज़्यादा कॉमन है, मतलब ज़्यादा प्रचलित है. सो वी यूज़ दिस एसआई सिस्टम जनरली, and even all over our 11th 12th course we use SI system and CGS system mostly. Both these systems are closely related to each other, and we express most of the things in SI system as well as in the CGS system. So for example, जैसे कि कैसे इनको लिखना है, like I have mass, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. मास को लिखते हैं हम केजी में, और मास और टाइम को लिखते हैं हम सेकेंड्स में, एंड लेंथ को लिखते हैं हम मीटर्स में. ओके, अगर आपको पता होगा तो हम मास को ग्राम में भी लिख सकते हैं, टाइम को सेकंड में तो भी लिखते हैं दोनों जगह, और लेंथ को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं. अगर हम इस तरह से लिखेंगे, मास को केजी, टाइम को सेकंड, लेंथ को मीटर, तो वो बेसिकली कौन सा सिस्टम है? वो आपका एसआई सिस्टम है. मतलब कहने का मतलब कि एसआई सिस्टम में मास को केजी में लिखा जाता है, टाइम को सेकंड में लिखा जाता है, लेंथ को मीटर में लिखा जाता है, और लेंथ को सीजीएस में सेंटीमीटर में लिखा जाता है, टाइम को सेकंड में लिखा जाता है, और मास को ग्राम में लिखा जाता है. दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. यू कैन इजीली कन्वर्ट केजी टू ग्राम, सेकंड टू सेकंड तो सेम ही है, मीटर टू सेंटीमीटर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दे आर इजी टू कन्वर्ट. सो वी यूज दीज टू सिस्टम्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस. इन आवर मेजरमेंट्स वी यूज दीज टू systems. So apart from that,
सो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और यूनिट्स को मेजर करने की हमारे पास 2 तरह के या 4 तरह के सिस्टम्स हैं, बट मोस्टली हम 2 ही तरह के सिस्टम का जनरल यूज करते हैं। वन इज एसआई सिस्टम एंड सेकंड वन इज द सीजीएस सिस्टम। ओके, इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। सो मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो आई एम कमिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस। सो डायमेंशनल एनालिसिस में हम एक लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब इसका क्या मतलब है, डायमेंशन फॉर्मूला का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें जिसका यूज किया जाएगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन दैट हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज with some powers on the fundamental quantities. So it is a mathematical formula used to represent a physical quantity. That's it. And every physical or every fundamental quantity there has some power. That power is known as the dimension. That power is known as the dimension, और formula का नाम है dimensional formula. Okay, so it is a mathematical equation that is used to represent a physical quantity in terms of fundamental quantity, and each fundamental quantity has some powers, and these powers are known as the dimensions. Okay, so dimension formula लिखना कैसे है? डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हम कुछ इस तरह की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और इसके अंदर अपनी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिख देते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमें उसका कुछ बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मास के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल एम, और लेंथ के लिए यूज करते हैं कैपिटल एल, और टाइम के लिए यूज करते हैं कैपिटल टी। ओके, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको खुद ही खुद समझ आ जाएगा। लाइक मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। ओके, दिस इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड टू लेंथ, सो यू विल राइट फॉर डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एल। टाइम के लिए आप क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। तो फॉर्मूला क्या बना? एल टी माइनस 1, और ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर velocity. This is the dimensional formula for velocity. इसी तरह आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट्स में इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ पावर्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उन पावर्स को डायमेंशन कहते हैं। लाइक मैं अभी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास? दैट इज कैपिटल एम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आपको नहीं पता, धीरे धीरे आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो मास के लिए हमने कैपिटल एम का यूज कर लिया है। वेलोसिटी का हम फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, जो कि था एल टी माइनस 1। टाइम का फॉर्मूला कैपिटल टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बनेगा एम एल टी माइनस 2। तो ये आपका फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। देखो फोर्स के फॉर्मूले में क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है? मास, लेंथ, टाइम। मास की पावर कितना है? 1। लेंथ का पावर कितना है? 1। टाइम का पावर कितना है? -2। सो वी एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी। ये जरूरी नहीं कि हमें फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो उसी को डायमेंशन में एक्सप्रेस करना है, हम ड्राइव क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फोर्स एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको बनाने के लिए हमने मास और एक्सेलरेशन का यूज किया था। मास एक फंडामेंटल है, और खुद एक्सेलरेशन को बनाने के लिए भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज किया है। तो ये हमारी ड्राइव क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला हमने डायमेंशन लिखा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका हमने लिखा, और डायमेंशन फॉर्मूला हमने इसका इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया कुछ पावर्स के साथ। ओके, जो भी वहां पर जो भी इसका फॉर्मूला जनरल बनता है उसके हिसाब से हमने कुछ भी फॉर्मूला इसका लिख दिया जो बन रहा था इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उनकी जो भी पावर वहां पर आ रही थी उस हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो इसी तरह आप बहुत सारी चीजों के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। दिस इज क्वाइट ईजी। और ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर अ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इससे हर बार कुछ ना कुछ जे मेंस में या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसी भी सीरीज में, एक दो सीरीज में इसका क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। या तो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से रहता है या डायमेंशनल एनालिसिस से रहता है। तो डायमेंशन एनालिसिस की कुछ 3 एप्लीकेशंस है, और मैं आज आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में, इसके एग्जैक्ट वीडियो के बाद मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसका पहला एप्लीकेशन रहता है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि आप किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, केजी किस लिए यूज किया जाता है? मास के लिए। केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। ओके,
तो केजी एसआई सिस्टम में है, ये एक अपने एसआई सिस्टम का है, ये अपने सीजीएस सिस्टम का है। तो हमने केजी को कन्वर्ट किया ग्राम में, 1 केजी को कन्वर्ट किया ग्राम में, 1000 ग्राम आ गया। हमने बेसिकली कन्वर्जन कहाँ से कहाँ किया, हमने एसआई से सीजीएस में कन्वर्जन कर दिया। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेके इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये काम करता है एक ऐसे प्रिंसिपल पे, उसका एक्सप्रेशन होता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n1? n1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 का मतलब है यूनिट, n2 का मतलब भी है न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 का मतलब है यूनिट। सो यहाँ 1 kg में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और kg आपका यूनिट है, और n2 में न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, n2 मतलब 1000 है और u2 आपका ग्राम है। जब भी आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कम है और आप एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जैसे यहाँ मैं केजी से ग्राम में जा रहा, तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप मतलब इस सेंस में समझिए कि केजी आपका एक बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट है और आपका ग्राम जो है छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब भी आप बड़े सिस्टम से छोटे सिस्टम की तरफ जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर 1000 है, बाकी मैथमेटिकली 1 किलो और 1000 ग्राम एक ही बात होती है। सो n1u1 इज इक्वल टू n2u2 का प्रिंसिपल हमेशा सेटिस्फाई रहने वाला है। आप इसका यूज करके कन्वर्जन का फॉर्मूला लगा के, इसी फॉर्मूले को लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और निकालना है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था। और इसका दूसरा एप्लीकेशन रहता है कि हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे और उसको देख के बताएंगे। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन हम किसी इक्वेशन को लिखेंगे और ये बताएंगे कि क्या वो इक्वेशन सही है डायमेंशनली या नहीं सही है। ओके, ये उसकी दूसरी एप्लीकेशन आ जाती है। तीसरी एप्लीकेशन इसकी रहती है कि आप किसी भी क्वांटिटी के लिए एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। मतलब आपको ये दिया होगा कि वो क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपको सिर्फ इतना दिया होगा कि ये क्वांटिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक F इक्वल टू ma का ले रहा हूँ। तो अभी हमें पता है कि फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। ओके, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द मास एंड एज वेल एन द एक्सेलरेशन। तो आपके पास यही दिया होगा कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं दिया होगा कि फोर्स मास की कोई पावर के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा है, बल्कि इस क्वेश्चन में मास की पावर 1 है, एक्सेलरेशन की पावर भी 1 है। तो कई बार कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला है 2π√L/g। तो यहाँ टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और जी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में इतना ही दिया होगा कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं बताया होगा कि लेंथ के रूट पे डिपेंड करता है, लेंथ की हाफ पावर पे और जी की हाफ पावर पे और इनवर्सली डिपेंड करता है। ये चीजें आपको डायमेंशन एनालिसिस बताएगी कि वो पावर कितनी है उसका, क्या वो इनवर्सली है, क्या वो डायरेक्टली है। सो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो मैं इसके बाद कुछ आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसी क्वेश्चंस में जो है आपका ये तीनों एप्लीकेशन भी क्लियर हो पाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस 11th class, that is units, physical quantities and dimensional formulas. Thank you.